Good morning, students. Again, welcome you all in another session of a video learning class of psychology. In the last video, I told you about the meaning of the poverty and discrimination. Poverty, in a simple term, or by the expert, I told you what is the meaning of a poverty, and by the socio-psychological aspect also. The different aspects I told you in the last video. Hope so you write down in your notebook also. The second term, discrimination, in chapter 6 or 7, in a very descriptive manner, this one topic was given with a suitable examples and broad topic, that was prejudice. Prejudice जो topic है हमारा chapter 6 में and chapter 7 also, उसमें discrimination को काफ़ी अच्छे से explain करा गया. If you have any doubt related to this one thing, you can take a help from that one chapters. So let's continue our chapter with the psychological characteristics and effect of poverty and discrimination. हम यहाँ पे psychological characteristics क्या होते हैं poverty और discrimination के, और उसके क्या effect होते हैं, we will talk about this one thing. The poverty and deprivation are a basic problem for every society. Indian social scientists include the sociology, psychological and economical aspects are undertaking a system research on the poor and a deprivation sector, because in a Indian society this one is a big problem for the our country to grown in a proper manner. अगर हमारी in our country, ये हमारी country में क्या है, एक basic problem है poverty, discrimination या फिर deprivation की जो feeling है, ये एक basic प्रॉब्लम है. तो इसमें हम क्या सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में अलग अलग एक्सपर्ट ने इसमें स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं टू रिमूव दिस वन प्रॉब्लम. Because if we are able to remove this one problem, so definitely our country will be succeed in each and every aspect. Their findings of observation so that the poverty and deprivation are adverse effect of motivation, personality, social behavior, cognitive aspects and a mental health. As per the point of the researcher, as I told you, the sociologist, the person belonging from the economics and the psychologist, they are doing their work to remove the poverty and discrimination from the country. And what the points come from their research, the things are the motivation, जो उन्होंने इफेक्ट इसमें क्या करे देखें विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट स्टडी. उन्होंने ये इफेक्ट देखे. फर्स्ट उन्होंने देखा मोटिवेशन, द सेकेंड वन इज अ पर्सनालिटी, थर्ड वन इज अ सोशल बिहेवियर, फोर्थ वन इज अ कॉग्निटिव process, and the last one is a mental health. So let's continue the topic. As in a motivation factor, if we will talk about the poor person and a deprivation person, the poor person have a low motivation factor, low achievement in a motivation and high need for डिपेंडेंसी. अगर हम पुअर पर्सन्स के बारे में बात करेंगे तो उनके अंदर क्या होता है, अपने आप को इंस्पायर करने की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है. अपने आप को वो खुद को इंस्पायर नहीं कर सकते, खुद को किसी चीज़ को, गोल को अचीव करने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, इंस्पायर नहीं कर सकते हैं. फाइन. लो अचीवमेंट फैक्टर होता है. किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो काफ़ी लो लेवल का होता है. थर्ड वन, बेसिकली जो पुअर पर्सन होता है वो डिपेंडेंट होता है रादर देन इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट की बजाय उनके अंदर कौन सा फैक्टर देखा जाता है, डिपेंडेंट. और वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपनी सक्सेस को, वो अपनी सक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं लक और फेथ rather than the ability of hard work. अगर कोई पुअर पर्सन सक्सीड होता है तो वो ये नहीं मानता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करा था, दैट इज़ वाई आई एम सक्सीड. वो क्या मानते हैं, नहीं ये मेरी किस्मत में था और मेरा ऐसा विश्वास था कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द लक आई डन दिस वन पर्टिकुलर टास्क. सो in this one thing what we said, the person explain their success in a term of a luck or a faith rather than ability or a hard work. वो ऐसा नहीं कहेगा I have a ability, that is why I done this one thing. But they said because of the luck or a faith. In general, they believe that events in their lives are controlled by factors outside them rather than within them.
ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका विश्वास है कि जितनी भी उनकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं उसे कोई बाहर के लोग कंट्रोल करते हैं रादर देन खुद के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन थिंग? इट इज़ अ बिलीफ और वी कैन से इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुअर पर्सन कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जितने भी अचीवमेंट हो रहे हैं, उसके लिए वो खुद के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, वो दूसरों के ऊपर उस चीज़ को डाल देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट टाइप होते हैं रादर देन इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या निकल के आया? लो मोटिवेशन ऑफ फॉर द अचीवमेंट एंड द हाई नीड ऑफ अ डिपेंडेंसी, सक्सीड इन अ टर्म ऑफ अ luck or a faith rather than a ability or a hard work, and they believe the event of the lives are dependent or the controlled by the factors outside rather than within by themselves. So you can write in a small points this one thing. Second thing, we will talk about the personality. With regret of the personality, the poor and a deprivate have a low self-esteem. As I told you earlier also about the self-esteem, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एंजाइटी होती है, लो सेल्फ इस्टीम होती है, इंट्रोवर्जन टाइप के होते हैं, एंड दे प्रेफर स्मॉलर इमीडिएट रिवॉर्ड टू अ लार्जर रिवॉर्ड इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स में बात करेंगे तो उनका सेल्फ इस्टीम क्या होता है? सेल्फ इस्टीम क्या होता है? लो होता है, हाई लेवल होता है एंजाइटी का, चिंता का होता है हाई लेवल। इंट्रोवर्जन टाइप के होते हैं, एक्सट्रोवर्जन नहीं होते हैं या रेयरली ही होते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रेजेंट पे फोकस करते हैं रादर देन अ फ्यूचर। तो उनके जितने भी वर्क होते हैं वो प्रेजेंट पे फोकस करते हुए होते हैं, क्योंकि वो कभी भी वो फ्यूचर के बारे में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका थिंकिंग लेवल नहीं होता है फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इन देयर परसेप्शन। क्यों होता है? बिकॉज देयर परसेप्शन सेड टू हिम द फ्यूचर इज़ टू अनसर्टेन, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है बहुत अनिश्चित है, इसलिए हम प्रेजेंट में बहुत कुछ अच्छा कर लें तो वही हमारे लिए काफ़ी कुछ होगा। दे लिव विथ अ सेंस ऑफ द होपलेसनेस, पावरलेसनेस फेल्ट द इनजस्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी एज द कंसेप्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। उनका क्या थिंकिंग लेवल होता है? वो हर समय होपलेस होते हैं। ठीक है, होपलेस होते हैं, वो ऐसा फील करते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ पावरलेस फील करते हैं अपने आप को। उन्हें लगता है कि हर जगह हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, और एक्सपीरियंस करते हैं लॉस ऑफ आइडेंटिटी का, हमारी कोई पहचान नहीं है। ये सारे एस्पेक्ट्स किसके रिलेटेड है? पर्सनालिटी के रिलेटेड है। थर्ड थिंग, अगर मैं सोशल बिहेवियर के कंसेप्ट में बात करूँगी तो सोसाइटी को लेके उनकी एक थिंकिंग जो होती है वो एंगरनेस होती है। उन्हें कहीं ना कहीं सोसाइटी को उसको देख के हर समय एंजाइटी वाली फीलिंग आती है, गुस्सा आता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी ऐसा हो रहा है। अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है हमारा डेप्रिवेशन या फिर पुअर्टी, तो उसके क्या फीचर्स हो जाते हैं? उसके जो फीचर्स होते हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में भी होते हैं और मेंटल हेल्थ में भी असर डालते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में कैसे होते हैं? इफ द डेप्रिवेशन और द पुअर्टी प्रोलॉन्ग्ड, सो व्हाट दे हैपन, they are unable to perform the mental task just like intellectual functioning, classification, verbal reasoning, time perception, जितने भी डेप्थ टाइप ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। सेम इन अ मैनर दे आर अनेबल टू डू द कॉग्निटिव टास्क परफॉर्मेंस इन अ प्रॉपर मैनर। फाइन। The poor are more likely to suffer that specific mental illness compared to a rich. वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? mental illness feel करते हैं rather than a rich person. I think this one is finished sufficient for today's lesson. I continued this one topic in a last video. Thank you beta. Have a nice day.